नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं सिजलस न्यूज, जहां खबरें मिलती है ताजा भी, तेज भी और सीधी दिल में लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे धमाकेदार हेडलाइंस। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि ये ड्रोन अगले 1 से 2 घंटे में इजराइल पहुंच सकते हैं। फिलहाल ये ड्रोन इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस में हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में सायरन बजने शुरू हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ ने चेतावनी दी है कि ईरान जल्दी ही एक बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। इससे पहले आज सुबह इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन 6 में से 4 जगहों पर परमाणु ठिकाने भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर थाईलैंड के फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-379 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यहां प्लेन में बम होने की सूचना मिली थी। विमान में 156 लोग सवार थे। फ्लाइट फुकेट से दिल्ली आ रही थी। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने फ्लाइट ट्रैकर 24 के हवाले से बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट ने फुकेट एयरपोर्ट से भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 पर और स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:30 पर टेक ऑफ किया था। विमान अंडमान सागर के ऊपर एक बड़ा चक्कर लगाते हुए पलटा और करीब 20 मिनट बाद फुकेट में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की। सभी यात्री और क्रू सेफ है। किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर बेबुनियादी टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के बड़बोले कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर का उनके ही देश के एक और मशहूर कॉमेडियन ने विरोध किया। उन्होंने एक वीडियो जारी कर इफ्तिखार पर निशाना साधा। पाकिस्तान में मशहूर कॉमेडियन और एक्टर अकरम उदास ने इस मामले को खत्म करने की सलाह देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान में इतना पैसा कमाया जा रहा था तो भारतीय फिल्मों में जाने की क्या जरूरत थी। करीब 3 मिनट 15 सेकंड का वीडियो जारी कर कलाकार ने मामले को शांत करने की सलाह दी। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਗਵਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਫਨਕਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 15 ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਦੇ ਦਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਫਲਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਰਾਈਟਰ ਮੰਗਾਏ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚਾਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜੈਟ ਤਿਆਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਦਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਡਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, TV ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ
मैं माफी चाहता अब बात करते हैं आंतरिक भारत की। एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI-171 ने गुरुवार दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। 2 मिनट बाद ही फ्लाइट क्रैश हो गई। इनमें 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। मृतकों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल हैं, जबकि सिर्फ एक यात्री की जान बची है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा, वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि हॉस्टल में कितनी मौतें हुई है। 4 MBBS छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी के मारे जाने की खबर आ रही है। घटना के बाद पीएम मोदी शुक्रवार सुबह अहमदाबाद पहुंची। सबसे पहले वे घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे। इसके बाद वे सिविल अस्पताल गए, जहां पर उन्होंने करीब 10 मिनट तक पीड़ितों से मुलाकात की। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिंदा बचे इकलौते यात्री रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। शायद दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे गिर गया। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार। रमेश कुमार अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को उनसे मुलाकात की और हालचाल जाना। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद रमेश ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा, पीएम ने उनका हालचाल जाना और पूछा कि हादसा कैसे हुआ था। रमेश प्लेन की 11A सीट पर बैठे थे। हादसे के बाद वे घटना स्थल से खुद पैदल चलकर बाहर निकले। वहीं राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक किसान ने इजरायली पौधा उगाने की पहल की। यह पौधा है जोजोबा। यह 70 साल तक बीज का प्रोडक्शन देता है। इस बीज का तेल 80,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकता है। जोजोबा ऑयल को लिक्विड सोना भी कहा जाता है। श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़ कस्बे के छोटे से गांव 23 PTD में किसान संत लाल वर्मा, जिनकी आयु 65 वर्ष की है, ने इस खेती की शुरुआत की। उन्होंने इस खेती की शुरुआत 1992 में की। तब भारत में कोई भी किसान इसकी खेती नहीं करता था। गांव वालों ने संत लाल को पागल कहा, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और 1 हेक्टेयर जमीन पर 1225 पौधे लगा दिए। 4 साल बाद उन्हें प्रोडक्शन मिलना शुरू हुआ। जोजोबा ऑयल फार्मा, कॉस्मेटिक, स्किन केयर में भी इस्तेमाल होता है। 1 हेक्टेयर में 15 से 20 क्विंटल तक उत्पाद हो जाता है। संतलाल 4 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं। इससे उन्हें 200 लीटर तक ऑयल मिलता है। वहीं जहां एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं महिलाओं की स्थिति आज भी समाज में शर्मसार कर देने वाली है। मामला भरतपुर का है। भरतपुर में 15 साल की लड़की को 4 युवक खींचकर एक दोस्त के कमरे पर ले गए। वहां एक युवक ने लड़की के साथ रेप किया। बाकी 3 दोस्त कमरे पर ताला लगाकर बाहर खड़े निगरानी करने लगे। लड़की के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को शक हुआ तो ताला खुलवाया। तब मामले का पता चला। मामला भरतपुर के रूपवास थाना इलाके का है। रूपवास थाना इंचार्ज चंद्र मोहन ने बताया कि लड़की के पिता ने गुरुवार 12 जून को शाम थाने में पहुंचकर चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बात करते हैं मौसम की। देश में मानसून 29 मई से मुंबई छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर रुका हुआ है।
साउथ और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट है। यहाँ तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा सकता है। वहीं हरियाणा के 9 जिलों में दिन का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राजस्थान में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में 14-15 जून से प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। कोटा, उदयपुर संभाग से बारिश का दौर शुरू होगा, जो 20 जून तक बढ़ते बढ़ते जयपुर, भरतपुर संभाग के एरिया को कवर करेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में 19 जून के बाद ही मानसून की एंट्री होने की संभावना है।